So, what was the homework? First page of Unit 8. We are going to learn something very interesting today, but it will require you to remember what you have studied so far. If you don't remember what you have studied so far, then today's lesson is going to be hard, very hard. And if you remember your old lessons, then today's lesson will be very easy. First of all, a couple of students wanted the link. Afzal, are you here, Afzal? Afzal is not here. Shams, are you here, Shams? Shams is not here either. Okay, we know some nouns are countable and some nouns are uncountable. So let's see. Number one, cheese. Cheese is usually uncountable. Two, apple. Apple is usually countable. Yeah, apple is usually countable. Three, food. Food is usually uncountable. Okay, I will explain again. Food is the name of that idea, an abstract noun in a way. Okay, that things we can eat. Rice is food, wheat is food, and for some people, snakes are also food. Okay, for some people, snakes are also food. Yes, birds are food. Some people eat pigeons, they eat chickens, right? Hens, and they eat some other birds too. So, food means anything that you consume to survive, to live. So, that's food. Food is an idea, an abstract noun. तो फिर कहेंगे तो आपने एक लाइन बताया था, व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स, तो प्लूरल कैसे हुआ? मेरी बात पर ध्यान देना उमर। अगर फूड अनकाउंटेबल है तो फिर वो लाइन कैसे बना, व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स? बन जाएगा, फूड अनकाउंटेबल है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फेवरेट फूड्स, तो ये भी एक फूड है, वो भी फूड है, तो सब अलग अलग बात कर रहे हैं उसके एग्जांपल्स लेकर के, इसीलिए उसको कह सकते हैं हाँ योर फेवरेट फूड्स। ओके, थैंक यू शशि। पुट द बोल्ट ऑन, पुट द बोल्ट ऑन, यस, या गुड। Number 4, biscuit. Biscuit is usually countable. Biscuit is usually countable. Aman is going to leave us in the physical class. He is going to Delhi. When are you going to Delhi, Aman? When are you going to Delhi? Are you going to Delhi, Aman? When? When are you going? Next month? Next February, January? When? In January. How long? How long? How long? How long? How long? How long means हाँ कितना समय? How long are you going to stay in Delhi? 1 month, 2 months, 3 months, 1 year? How long are you going to stay? Huh? Now, my question is, how long? Hi, nobody will translate. अच्छा एक काम करते हैं. Rudra and Tabriz and Umar, we have a chair here. Please come. Please come. Yes. Come here. Rudra, come here. Here, Rudra. Yes. Yeah. Yeah. Right. Yeah. This is good. My question was, how long are you going to stay in Delhi? तो इन दिल्ली तो समझ गया होगा बच्चा, अब वो हेल्प करेगा अंदाजा लगाने में।
How long are you going to stay in Delhi? नहीं समझ में आया? तो लोग छोड़ देना बेटा, हम कर लेंगे हैंडल. You are going to live in Delhi forever? Please come in. Forever, or you are going to come back in 10-15 days? Why are you going to Delhi? Why? What's the reason? Why are you going? Somebody lives there? Your masi, your auntie, somebody lives there? Who lives in Delhi? Huh? Your chachu lives there? So you will live with your chachu and study there. You will also study in Delhi? Okay. Where does your chachu live? In which part of Delhi? Okay, okay. ये बातचीत ही तुम्हारा रास्ता है. ये बातचीत है, वो समझ लेना, वो कुदाल जो गड्ढा कर रही है, जो गड्ढा तुम करना चाहते हो. यानी बातचीत तुम्हारा हथियार है. ये बातचीत ही, इसमें शामिल होकर ही तुम इंग्लिश सीख सकते हो, इससे भाग के नहीं. इस बातचीत से जो भागते हैं वो इंग्लिश सीखने में देर लगा देंगे. कुछ कुछ वर्ड्स मैं देता हूं जिससे मदद ली जा सकती है. जैसे मैंने कहा था, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन दिल्ली, तो स्टे इन दिल्ली, दिल्ली में रहना, ये आ रहा है. हाउ लॉन्ग, कितना दिन दिल्ली में रहना, कितना दिन दिल्ली में रहना. तो मैंने पूछा था, आप दिल्ली में कितना दिन रहोगे? हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन दिल्ली. इसका जवाब क्या है? इसका जवाब क्या है बेटा? आपका जवाब क्या है? आप कितने दिन दिल्ली में रहोगे? कितने दिन रहोगे अमन? कितने दिन रहोगे? अच्छा, इसका इसका कंफ्यूजन ये हुआ कि उसने गोइंग टू दिल्ली बोला, वो कहता आई एम मूविंग टू दिल्ली. आई एम, तो मैं नहीं पूछता, फिर नहीं पूछता, वो कह देता आई एम मूविंग टू दिल्ली. इसका मतलब हो जाता है हम दिल्ली रहने जा रहे हैं, वहीं रहेंगे. अब आई एम मूविंग टू दिल्ली फॉर माई स्टडीज, फॉर माई चाचू लिव्स देयर एंड आई एम गोइंग टू स्टे विद हिम. ओके, देन कोई सवाल नहीं बस बनता है. फिर ठीक है. फिर he will continue his studies there, he will try to get a job there, he will try to settle down there, like that. Okay. Biscuit, uncountable or countable? It is a countable noun. A biscuit, two biscuits, three biscuits, a lot of biscuits, a lot of biscuits. Some biscuits, any biscuits. Do you have any biscuits? Okay. Bread, uncountable beta. I'll explain. Bread is uncountable beta. There is a reason. I'll explain. आप लोग ब्रेड मतलब रोटी सोचे क्या? अगर रोटी सोचेंगे तो काउंटेबल है रोटी. ब्रेड नहीं काउंटेबल है, रोटी काउंटेबल है. ब्रेड क्या होता है वो बता दो. ब्रेड अवन में बनाई जाने वाली चीज है. किस चीज में? तो वो ना, उसका कोई, अच्छा, काउंटेबल होने के लिए किसी चीज को उसका एक शेप होना चाहिए. जैसे टमाटर, कब हम बोलते हैं एक है? जब वो पूरा होता है. अब वो बड़ा साइज हो सकता है, छोटा साइज हो सकता है, लेकिन एक रहेगा. आप बड़े टमाटर को दो टुकड़ों में काट के किसी को कहिए लो 2 टमाटर, तो कहेगा बेवकूफ समझते हैं हमको. ये 2 टमाटर थोड़ी है. क्योंकि इंसान के दिमाग में एक शेप है. किस चीज का? टमाटर का. तो जब शेप पूरा होता है उसको एक मानते हैं. तो ऐसी हर चीज जो काउंटेबल होगी उसका अपने आप में एक शेप होना चाहिए. अब ब्रेड के बारे में क्या ख्याल है आपका? ब्रेड का क्या शेप है भाई? तो मैं आपको बताता हूं. आप जो सोच रहे हैं ना, वो ब्रेड का शेप नहीं है, वो लोफ है. वो लोफ, वो क्या है? लोफ है. LOAF, लोफ है वो. आप जिसको ब्रेड सोच रहे हो, जो शेप सोच रहे हो वैसे, वो लोफ है. क्या है? लोफ. मैं आपको समझाता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. आपके पास 5 किलो आटा है, मैदा, और आपके पास एक बड़ा सा अवन है. तो आप 5 किलो मैदा को एक बार नीड करोगे, गूंथ लोगे. नीड करना मतलब गूंथना. KNEAD, KNEAD, नीड.
नीड मतलब गूंथना, पानी डाल के ऐसे ऐसे करना, उसको नीड कहते हैं। कभी कभी मसल्स को भी नीड करता है, जो आपका मसाज करने वाला होता है क्या करता है, आपके मसल्स को नीड करता है, यानी कि उसको गूंथ देता है, यानी ऐसे ऐसे करके ही नीड्स योर मसल्स। नीड स्पेलिंग KNEAD, नीड, नीड योर मसल्स, नीड द फ्लावर मतलब कि उसको गूंथना, उसको ऐसे ऐसे दबाना, ऐसे ऐसे घुमाना, ठीक है, इसी को नीड करना कहते हैं, KNEAD। तो और जो नीड करते हैं ना मैदे को या आटे को, तो जो बन जाता है ना उसको कहते हैं हम लोग डो। क्या कहते हैं उसको? डो। स्पेलिंग DOUGH, DOU, डो। पहले आपके पास मैदा या आटा होता है, उसमें पानी डाल के आप उसको क्या करते हो, नीड करते हो, क्या करते हो, और नीड करने के बाद वो क्या बन जाता है, डो बन जाता है। गॉट इट? तो मान लो आपके पास 5 किलो आटा, यू हैव 5 किलोज ऑफ फ्लावर, ओके। आपने उसको नीड करके डो बना लिया, और बड़ा सा ओवन है, तो उसको एक साथ ऐसे अंदर डाल दिया ओवन में, और वो ओवन में हीट के साथ धीरे 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 फूल के तैयार हो गया, आप निकाल दिए। तो एक बड़ा सा 5 किलो का लोफ तैयार हुआ। क्या हुआ? 5 किलो का लोफ तैयार हुआ, ठीक है। ब्रेड का कोई, जैसे टमाटर का फिक्स्ड है शेप, आम का फिक्स्ड है शेप, बनाना का फिक्स्ड है शेप, राइट। तो जिसका फिक्स्ड होता है शेप, तो उसी को एक मान लेते हैं। अगर एक बनाना को ऐसे दो हिस्से में काट के कह लो 2 बनाना हो गया, तो छोटे बच्चे 2-3 साल के शायद मान ले कि 2 बनाना है, बाकी लोग नहीं मानेंगे, कहेंगे बेवकूफ समझते हो, ये 2 बनाना है कि आधा आधा बनाना है, एक ही बनाना है। तो उनके दिमाग में एक बनाना का शेप है, इसकी वजह से उनको एक का आइडिया आता है। लेकिन ब्रेड जो है, जिस तरह से इंग्लिश में देखा जाता है, ब्रेड एक जैसे ब्रेड को आप एक शेप में नहीं डालते, वो जो आप शेप सोचते हो ना जो होता है वो डो, वो कहलाता है लोफ। तो 5 किलो का एक बड़ा सा क्या बनाया आपने, लोफ बनाया। मान लीजिए आपका आपका अवन उतना बड़ा नहीं होता, तो आप 5 किलो जो डो बनाए थे ना, उसको 5 हिस्से में बांटते, 1-1 किलो का, और फिर उसको अवन में बारी बारी से क्या करते, बेक करते आप, है ना। तो चूंकि आपका अवन छोटा है, तो आपने इस बार छोटे छोटे क्या बनाए, लोफ बनाए, लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड। तो लोफ है वो जो बन के निकलता है। अब उसके बाद आप उसको क्या करते हो, स्लाइस करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो उसको, और जो आपके पास आता है वो स्लाइस्ड ब्रेड है, ठीक है। तो उनका लोफ का जो कंटेनर है, अगर बड़ा कंटेनर है तो बड़ा लोफ बनेगा, छोटा कंटेनर है तो छोटा लोफ बनेगा। तो आप 12-15 रुपए वाला लेते हो, छोटा लोफ रहता है, 25-30 रुपए 40 रुपए वाला लोगे, बड़ा लोफ रहेगा। तो लोफ है वो एक। तो आप लोफ को गिन सकते हो, 1 loaf ऑफ ब्रेड, 2 loaves ऑफ ब्रेड, 3 loaves ऑफ ब्रेड, लेकिन ब्रेड अनकाउंटेबल है। तो लोफ है एक पूरा, और जो उसको काट दिए तो उसके स्लाइसेस हैं, तो आपने 2 ले लिए, तो आप कहेंगे मैंने 2 slices ऑफ ब्रेड खाए, 2 ब्रेड्स नहीं खाए, आपने 2 slices ऑफ ब्रेड खाए। तो स्लाइस काउंटेबल है, हाँ। आपने 1 स्लाइस खाया, 2 स्लाइस खाया, 3 स्लाइस खाया, स्लाइसेस काउंटेबल है। स्लाइसेस के अलावे लोफ भी काउंटेबल है, कि आपने 2 लोव्स ऑफ ब्रेड बनाए, 3 लोव्स ऑफ ब्रेड बनाए, बिग लोव्स बनाए, स्मॉल लोव्स बनाए, ठीक है। जैसे एक टमाटर 25 ग्राम का भी हो सकता है, और एक 50 का टमाटर 100 ग्राम का भी हो सकता है, लेकिन एक ही गिना जाएगा। तो वैसे ही लोफ एक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक गिना जाएगा, लोफ एक छोटा भी हो सकता है, एक ही गिना जाएगा। जैसे छोटा टमाटर, छोटा लोफ, बड़ा लोफ, ठीक है। तो काउंटेबल क्या है, लोफ, ना कि ब्रेड। ब्रेड एक आइडिया है जो कि आप काउंटेबल नहीं मानते इंग्लिश में, ठीक है। वो इंग्लिश में क्या होता है, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है। कई जगहों पे लॉजिक काम नहीं करेगी। जो एक लॉजिक मैंने एक चीज समझाया बताने के लिए कि क्यों काउंटेबल है या क्यों अनकाउंटेबल है, सेम लॉजिक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे दूसरी चीजों पे, ऐसा पॉसिबल है। लैंग्वेज कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि हर जगह लॉजिक करके आप समझ सकते हैं। कुछ चीजें रैंडम होती हैं, आर्बिट्ररी होती हैं। आर्बिट्ररी मतलब होता है जिसमें कुछ ऐसे जैसे तैसे हो जाए, बस है तो है, आर्बिट्ररी, रैंडम, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पिछले क्लास में आप लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था किसी काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, वेजिटेबल्स और फ्रूट के बारे में, राइट। मैं बात कर दूं उस पर,
तो वेजिटेबल को ना वो काउंटेबल मानते हैं, बड़ा ही अजीब है। लॉजिक देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, लेकिन वेजिटेबल को क्या मानते वो। और फ्रूट को, इंग्लिश में फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन समझा जाता है और वेजिटेबल काउंटेबल। तो आई ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट। आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क्स। A lot of milk is uncountable, so milk होएगा नहीं। I drink a lot of milk, तो वैसे हम बहुत फल खाते हैं। I eat a lot of, but I eat a lot of vegetables। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, बस एक्सेप्ट कर लीजिए, खाली ये मान लीजिए कि फ्रूट इज अनकाउंटेबल, और इसको चैलेंज मत करिए। मतलब चैलेंज करने का मतलब इसको चैलेंज करने का मतलब हम नहीं मानेंगे वाला काम मत करिए। नहीं, आपके नहीं मानने से कुछ बदलेगा नहीं, आप खाली गलत रहेंगे। ओके, तो लैंग्वेज में क्या है, बहुत सी चीजों में आपको चुपचाप सिर नीचे करके एक्सेप्ट कर लेना होगा और आगे बढ़ जाना है। अच्छा, जब आप मान लेते हो फ्रूट इज अनकाउंटेबल, तो आप बोलना बंद कर देते हो अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट इज, तो मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो आप अ लॉट ऑफ मिल्क बोलते हो कि लॉट ऑफ मिल्क। अ लॉट ऑफ मिल्क। वंस यू एक्सेप्ट दैट फ्रूट इज अनकाउंटेबल, फ्रॉम हियर इट्स इजी, सिंपल एंड इजी। आपको करना क्या है, अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया फ्रूट अनकाउंटेबल है, आपका दिमाग नहीं कहेगा ए लॉट ऑफ फ्रूट्स बोलने का। क्यों, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल कैसे होगा, इसलिए आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट। लेकिन द मार्केट इज फुल ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, टोटली नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इंग्लिश में फ्रूट काउंटेबल हो सकता है अगर हम उसके काइंड की बात करें। तो इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल हो जाते हैं अगर उनके काइंड्स की बात करी जाए। उनके काइंड्स मतलब समझ रहे हो ना, प्रकार। गिव मी अ सेकेंड। हेलो, आई हैव शेयर्ड द लिंक बेटा। क्या होता है बेटा, जब आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो क्या होता है। अ, फिर से इस लिंक को क्लिक करिए, जो लिंक मैंने भेजा उसको क्लिक करिए। क्लिक किया, क्या हो रहा है। जब आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो क्या क्या ऑप्शन आता है, स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे, स्क्रीनशॉट भेजना ग्रुप में। ज्वाइन क्लिक कर दो, क्या हो रहा है। अच्छा, एक काम करो, आप उस वहां से हटो, ग्रुप में आओ वापस, ग्रुप में, ठीक है। आप एलिमेंट्री 330 ग्रुप में हो, वहां पर एक लिंक है, उसको क्लिक करो। क्या आया अभी ऑप्शन, जरा मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजना जो ऑप्शन सारे। स्क्रीनशॉट लेना था आपको, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजिए बेटा, ग्रुप में ही भेज दीजिए। बिल्कुल। ज्वाइन तो आपका ग्रे है बेटा, वो ब्लू हो नहीं रहा। ज्वाइन, ज्वाइन ऑप्शन जो है वो ब्लू होना चाहिए था जब आप ऐसा करते हैं तो। और डोंट कनेक्ट, अच्छा नीचे जो लिखा है ज्वाइन ऑप्शंस में जाइए बेटा, ज्वाइन ऑप्शंस आपके स्क्रीनशॉट में, ठीक है।
एक ऑप्शन है ज्वाइन ऑप्शंस। अच्छा, वहां पर कुछ नहीं होगा। आपने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं भेजा मुझे, आप उसको क्रॉप मत करिए। नहीं, ये अच्छा, ये पूरा है। अच्छा, हाँ बेटा, और अच्छे से पूरा पूरा स्क्रीनशॉट भेजिए तो। हम्म, किसने? शशि बेटा। हाँ, यहाँ लिखा है इफ यू रिसीव्ड एन इनविटेशन लिंक, टैप ऑन द लिंक टू ज्वाइन द मीटिंग। तो उस लिंक को आप टैप नहीं कर रहे हो बेटा, आप लिंक को टैप नहीं कर रहे हो। जो मैंने लिंक भेजा है ग्रुप में, उसको क्लिक कर रहे हो, उस लिंक को क्लिक कर रहे हो। हाँ, अच्छा, उसको क्लिक करते हो तो यहाँ पहुंच जाते हो आप। उसको क्लिक करते हो तो यहाँ पहुंच जाते हो। इसको ऐसा करो, बंद कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो। कहते हैं ना क्रॉस करके बंद करना, सारा बंद कर दो। और फिर वो लिंक को क्लिक करो एक बार फिर से। ठीक है, इसको पहले बंद कर दो बेटा, और देखना क्या होता है। आपको खाली लिंक को क्लिक करना है, क्लिक करना है, आपको जूम पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ इस लिंक को क्लिक करना है। क्या आया बेटा अभी आपके सामने? कुछ आएगा? क्लिक करा है तो आपने, लिंक को क्लिक किया आपने? क्लिक करिए फिर से लिंक को। अभी कुछ नहीं हो रहा। आप एक काम करें, आप ना अपने फोन को रीस्टार्ट कर दें, ठीक है? और मैं आपको फिर से लिंक भेज रहा हूं, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे लिंक भेजता हूँ, शायद उससे कुछ फर्क पड़े। तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे मुझे हेलो बोलिए। मैं आपको शेयर करता हूँ लिंक वहां पे, और एक बार फोन को रीस्टार्ट करके फिर से जो मैं लिंक भेजूंगा, आप उसको सिर्फ क्लिक करेंगे ना, आप क्लास में आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, आप ना काम करना, एक बार पहले इस लिंक को क्लिक करो जो मैंने अभी भेजा आपको। क्या हुआ? तो एक काम करें, आप अपना फोन रीस्टार्ट करें, ठीक है? और उसके बाद फिर से ट्राई करें ये चीज, ओके? इट विल वर्क। रीस्टार्ट करिए बेटा फोन कर, फिर से काट के रीस्टार्ट करिए फोन। सिया। ओके गाइस, वेयर वर वी? हम्म तो कई कई बार मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स को, कुछ अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल हो जाते हैं जब हम बात करते हैं उनके। इसलिए व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स? व्हाट आर योर फूड अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी बोल रहे व्हाट आर योर फेवरेट फूड्स, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये वाला वो वाला ये वाला। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स इस तरह से, ऑयल्स। ऑयल्स बोलने का क्या मतलब होता है? हाँ, आप समझ रहे ना? ऑयल्स, ऐसे तो ऑयल अनकाउंटेबल है ऑब्वियसली, बट ऑयल्स हो सकता है अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल की बात कर रहे हो तो। ठीक है, सम ऑयल्स आर मोर हार्मफुल देन अदर। सम ऑयल्स आर, इट मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ ऑयल्स, ऑयल तो ऑयल ऐसे तो अनकाउंटेबल है, लेकिन इस तरह से इनके काउंटेबल के तौर पे यूज किया जाता है जब उसके काइंड की बात होती है। तो the question, what was the line beta here? The word was bread. Bread is uncountable, fruit is uncountable, vegetable is countable। और कई बार ये सब रैंडम होता है, आर्बिट्ररी मैंने कहा, मतलब इसमें लॉजिक नहीं चलेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो कैसे पूछेंगे? डू यू हैव एनी ब्रेड्स, डू यू हैव एनी ब्रेड, विच इज करेक्ट? डू यू हैव एनी ब्रेड, ब्रेड क्योंकि अनकाउंटेबल है तो प्लूरल होएगा नहीं। डू यू हैव एनी वाटर, ठीक है। डू यू हैव एनी मिल्क, डू यू हैव एनी मनी, सिमिलरली डू यू हैव एनी ब्रेड, ब्रेड की जगह कैरेट बोलना हो तो बोलेंगे डू यू हैव एनी कैरेट्स, प्लूरल काउंटेबल, ओके, यस। एग, डू यू हैव एनी eggs, do you have any eggs? All right, I think you guys have understood this a little bit. Next, milk is uncountable. Chip, countable and plural. Chips, well done. Tomato, yeah, tomato, both are correct. Tomato and tomato. Tomato is British English pronunciation and American people say tomato, okay. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल। क्यों है काउंटेबल? एक का आइडिया होता है तो इसलिए ऐसा एक और आएगा तो दो हो जाएगा, इसीलिए। गॉट इट? नेक्स्ट, फ्रूट अनकाउंटेबल, फ्रूट इज अनकाउंटेबल। पास्ता अनकाउंटेबल, ओके। बनाना काउंटेबल। टी अनकाउंटेबल, एक जगह काउंटेबल हो जाता है, दुकान पे जाके बोलते हैं दो चाय दो भाई, गिव मी टू, कैन आई हैव टू टीज, कैन आई हैव टू टीज। एग नेचुरली काउंटेबल, एक का शेप होता है, ऐसा एक और आ जाएगा तो कहेंगे दो, राइट। टू एग्स, तो एग इज काउंटेबल ना। वाटर, स्ट्रॉबेरी, वेरी गुड। बटर, ओके, अनकाउंटेबल। अब देखते हैं ये जानने के बाद इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कि अगर ये जानते हैं कि कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है तो यूज करने में कैसे क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है देख लेते हैं। We need to use a or an or some. Let's check. Number one, there is some food on the table. There is, why some food? Because food is uncountable. A and an are not used with uncountable nouns. Reason? Because वो uncountable है, उसको a और an कैसे बोले? उसमें a और an का literal meaning एक हो जाता है, तो जब अनकाउंटेबल है तो एक कैसे बोले, दो कैसे, कोई आइडिया नहीं है, तो बस वो नाउन बोल रहा होता है। देयर इज सम फूड, थोड़ा सा, देयर इज सम फूड ऑन द टेबल, कम एंड गेट इट। और इट पे ध्यान देना, इट यूज हुआ, कम एंड गेट इट। अगर वो फूड के जगह वेजिटेबल्स कर दे तो सेंटेंस क्या होगा बेटा? पूरा शुरू से करते हैं। देयर, फूड की जगह वेजिटेबल्स बोलना है बेटा, या एग बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? There are some eggs, there are some vegetables on the table. Come and get, come and get. ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए छोटी सी चीज? ऑलराइट। नंबर टू, अच्छा कुछ लड़के नहीं समझे, थोड़ा समझ लें, जैसे मेरा इंजमाम बेटा ध्यान देना। देर आर सम एग्स, तो आर क्यों बोला? क्योंकि प्लूरल हो जाएगा ना एग्स। देर आर सम एग्स ऑन द टेबल, कम एंड गेट them क्यों भाई? eggs, come and get them, okay। two, आइए ले जाइए, है ना, आइए और ले जाइए, ठीक है। come and get them, come and get them, okay। number two, I usually have an apple for breakfast, I usually have an apple for breakfast। एक जोक सुनाओ। I have a joke for you, but I don't know how many people will understand. So there was a a nurse. She was beautiful. There was a nurse. She was beautiful. Okay. So she worked in a hospital, of course, and nurses work with doctors, right? Yeah. So the nurse had a boyfriend. Okay. So the boyfriend gave her an apple every day. The boyfriend of the nurse gave her an apple every day. She used to feel curious. She asked one day, why do you give me an apple every day? Then he said,
because an apple a day keeps the doctor away. You have heard it before. Okay. An apple a day keeps the doctor away. Okay, fine. All right. जरूरी नहीं कि सबको समझ में आए जोक, इट्स ऑल राइट. तो इट्स ओके. If her boyfriend becomes a doctor, then maybe he will stop giving her the apple. Okay. So, do you guys like apples? You should have an apple in the morning, for breakfast, because an apple a day keeps the doctor away. You stay healthy, okay? You stay healthy when you eat an apple every day. Yeah, you don't need a doctor when you have an apple every day. Yeah. Okay. By the way, number 2, I usually have an apple for breakfast. Anybody here has an apple for breakfast? Okay. Does anybody have an egg for breakfast here? No. Okay. When I change my lifestyle, I don't know when that will happen. I want to have a different kind of lifestyle where I think, I don't know. Some people don't eat roti sabji for breakfast. A lot of people don't eat roti sabji for breakfast. They just eat a couple of eggs, a glass of milk, an omelette, a glass of juice, or an egg sandwich, all right, and a glass of juice, things like this. I think that is good. It saves women from cooking 3 times. Otherwise, Indian wives, they cook 3 meals a day. Once in the morning, a big breakfast they cook for 5, 6 people. Then they have to cook again in the afternoon, and then the third time at night. I think that's boring, cooking 3 times for so many people. It's a boring job. How many girls here in this room are ready for this kind of life where you will be in the kitchen cooking 3 times a day and everybody else will eat? Bhai, batao. You're ready? You'll love that. You won't mind. You won't complain. You are messing with me, I know. You're messing with me. Sir doesn't want to hear that. So you're saying, I'm okay with that. So you're perfectly fine becoming a housewife in the future. But you said you would do that. You would do it for your parents, maybe. Yeah. She would cook 3 meals a day for her parents. But what about cooking 3 meals a day for your husband's family, and your children? That's boring, isn't it? For you, she can do 4 meals a day, no issues. She's the older sister. She loves you. And yes, she does. She does. Your mama cooks 3 meals a day, in the morning, then in the afternoon, then in the evening. Would you like that lifestyle? Anybody here? Any of the girls here? Are you okay with that? आफिया बोल रही है और कोई रास्ता तो है नहीं. हाँ, है, रास्ता है. रास्ता है. क्या है रास्ता? Okay. That rasta, I will tell you, but you'll have to pay me for that. I will not tell you for free. It's a very, very effective method, actually. You can save yourself from cooking 3 meals a day. Afia doesn't like cooking. Afia doesn't like cooking. She's very lazy when it comes to cooking. You hate cooking, don't you? One time a day is okay, but 3 meals a day? I agree. If you have to do one cooking one time, either breakfast or lunch or dinner, only one, then it's okay. You can handle it. But if you have to cook 3 times a day, it's like really boring. I would hate that lifestyle. So that's why I want, breakfast where nobody has to do a lot of cooking. Think of boiling eggs. That's easy. Yeah, eat boiled eggs and have a glass of juice or milk or something. And I think it's a very healthy breakfast. 2 or 3 eggs and a glass of juice or a glass of milk and a few salads like maybe apples or some other things.
Yeah. I don't like this where you have to eat paratha and sabji for breakfast and dal bhat sabji for lunch in the afternoon and then roti sabji at night or roti chicken at night. I mean, I don't like eating cooked meals 3 times a day. 2 times is maximum. Otherwise, just once maybe. If I were very rich, I would have a different lifestyle, food habits. I would eat only, maybe eggs, milk, juice, and fruit for breakfast. No cooked meal. And for lunch, I would like to eat chicken, mainly chicken, boiled, maybe slightly, fried with a little bit of butter and a little bit of black pepper, not much, not many spices on it. Okay. Mm. Because I think I would like to eat healthy. And for dinner, I would prefer a nice Indian meal. Anything like dal, roti, sabji, or whatever. I'm not very fond of rice. I wouldn't mind if I eat rice only one day a week. I would be fine with that. Maybe on a Sunday, mutton and rice in the afternoon. Yeah. But for that, I have to be very rich. Because if you have this kind of eating habit and you have a family of 10 people, then you'll have to keep 50,000 rupees only for the food. Okay, not 50,000, but still 30,000 rupees for the food only because it's expensive to eat mutton, chicken every day and dry fruit and all these things. We pay 4,000 rupees per month for the milk. And how much milk do we buy only? 2 liters of milk, I think, 2.5 liters. And if 10 people are drinking milk, half a liter milk, then that will be 5 liters. So 8,000 rupees you have to spend only on the milk, isn't it? So, guys, if you want to eat good food, try to be rich. Okay. Poor people can't eat good food. They have to eat the same roti sabji, dal bhat sabji. Say again. इसी में roti sabji. Well, yeah, because there are people who are not getting even roti and sabji. So, yeah, they can say that. Europeans are stronger than us, bigger than us, because they eat more protein than us. Mm. And protein is not in dal bhat sabji. Protein is in chicken. Protein is in gram, chana, mungfali. Yes. Do you eat peanuts every day? No. The only thing we eat every day that has protein is dal. Dal has a lot of protein, but not so much. Chicken has more. Eggs have more protein than dal. Dal is a good source of protein for vegetarian people. But that's the only thing you eat which has protein. You eat every day. Otherwise, everything else, I mean, roti has very little protein. It has protein, but not so much. And protein is your building block. If your muscles are not very big, if your biceps are not very big, it's not because you don't go to the gym. It's because you don't eat enough protein. All right. Anyways, coming back to this, I usually have an apple for breakfast. Number 3, can you buy any bread or some bread? But this is a question. We learned that we use any with question and some with positive sentences. Then what shall we use? Can you buy any bread or some bread at the shop? Any breads, right? Have you forgotten what you studied on Saturday? What did I teach on Saturday? That if you make a request or an offer, then you don't use any, you use some. So what is this? Can you buy some bread at the shops? It's a request. So which is better, some or any? Negative and questions. Negative and questions. Question nahi, question.
क्वेश्चन नहीं, KO नहीं, क्वेश्चन। आपको क्या लगता है नंबर 3 में क्या होना चाहिए शशि? वाई, एनी क्यों नहीं हो? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में सम थोड़ी यूज होता है, ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ, क्या? तो नेगेटिव में खाली थोड़ी एनी यूज होता है, क्वेश्चन में भी तो एनी यूज होता है। कैसे पूछेंगे? तुम्हारे पास पैसा है, कैसे पूछेंगे? डू यू हैव? तो एनी यूज हुआ ना, तो एनी यूज होना चाहिए ना। तो शशि, क्या यूज होना चाहिए बच्चे? सम कैसे यूज करें इसमें, उसका लॉजिक क्या है शशि? लॉजिक नहीं है, ठीक है, लॉजिक दिमाग में नहीं उनके, गलत सिचुएशन में है। शम्स बेटा आप बता सकते हैं शम्स क्यों बोलना चाहिए सम? इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट बेटा? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? और सैटरडे के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हेन वी आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट और व्हेन वी आर मेकिंग एन ऑफर, देन वी यूज नॉट। इसीलिए यहां पर सही क्या होगा? कैन यू बाई सम ब्रेड एट द शॉप्स? बाजार जा रहे हो तो कुछ ब्रेड खरीद लेते आओगे थोड़ा सा। कैन यू बाई सम ब्रेड एट द शॉप्स? एट द शॉप्स को सर्कल कर लेना बेटा, एट द शॉप्स। हिंदी में हम लोग बोलते बाजार जा रहे हो, लेते आना ना थोड़ा सा। क्या? ब्रेड लेते आना थोड़ा सा। चलो ऐसे बोलो ना कि थोड़ा सा सेब लेते आना ना बाजार से। कैन यू कैन यू बाई सम एप्पल्स एट द शॉप? बाजार से थोड़ा अंडा लेते आना ना, जा रहे हो बाजार जा रहे हो, अंडा लेते आना ना। आर यू गोइंग टू द शॉप्स? आर यू? कैन यू बाई सम एग्स? आर यू गोइंग टू द शॉप्स? कैन यू बाई सम एग्स? आर यू गोइंग टू द शॉप्स मतलब क्या बोले? बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू द शॉप्स? दोस्तों ये सेंटेंस मैं आपको सिखा रहा हूं, और बाकी तो आपको पता है सब लोग क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग टू द मार्केट, यही बोलेंगे ना। बाजार जा रहे हो, इंग्लिश क्या सीखे आप? आर यू गोइंग टू द। देखिए, अच्छा बताइए, आजकल आजकल मैं गलत वर्ड सिखा रहा हूं आपको, सिखा कह रहा हूं, आप जानते हैं, बस बस एग्जांपल ले रहा हूं कि बेटा कुछ लोग ना हुतिया वर्ड लिख देते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन लिख देते हैं क्या वो? हुतिया, ताकि उनको कोई उनको ये ना करे कि उन्होंने गाली लिखा, लेकिन सब समझते वो हुतिया नहीं बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं। राइट बेटा? आप समझ गए मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, मैंने बोला क्या है? हुतिया। राइट? ये कोई वर्ड है नहीं ऐसे अपने आप में, लेकिन हम लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि जिसने ये वर्ड बोला उसने वो एक्चुअली वो वाला वर्ड बोला है। राइट? तो हम लोग आपस में तो हुतिया बोल देंगे, बोलेंगे हुतिया बे, तो समझ जाएगा गाली दिया मेरे को। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यही बात हम उस सर्कल में बोले जहां पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, तो बोलेगा क्या बोल रहा है ये। राइट? ये वहां समझ में आ जाएगा जहां पर अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। राइट? तो अगर बिहार में, यूपी में कोई बोले आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो लोग समझ जाएंगे वो क्या पूछ रहा है। ठीक है? लेकिन अगर ये लाइन तुमने जापानीज से बोली, आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो वो कुछ और समझेगा। इसका मतलब उसके दिमाग में चलेगा कि कोई वो आप उससे पूछ रहे हैं आर यू गोइंग टू द मार्केट। अगर आप ऐसा पूछेंगे, वो बाजार जा रहा होगा फिर भी बोलेगा नो, तो आप कंफ्यूज जाएंगे, अरे तुम तो जा रहे हो और वो ना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो जा रहा होगा लेकिन मार्केट नहीं जा रहा होगा, क्योंकि मार्केट का असली मतलब होता है, मीनिंग होता है उस तरह की बाजारें जो टेम्पररी लगती हैं, किसी खास दिन खास समय के लिए, और ज्यादातर लोकल प्रोडक्ट्स बेचती हैं। ठीक है? जैसे वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है? तो अगर खाली कोई बोला आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो इसका मतलब होता है जिस दिन हाट लगता है, हाट लगना समझते हो, उसके उसमें जा रहा है कोई, तो आप पूछते हो उससे आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो मार्केट का वो मीनिंग होता है। जबकि आप तो जा रहे हैं अपना रेगुलर शॉप पे, जहां से जा करके चाय पत्ती लेके चले आएंगे, ठीक है, या दूध लेके चले आएंगे।
तो इसलिए आपको कौन सा फ्रेज नहीं यूज करना चाहिए, आर यू गोइंग टू द मार्केट। लेकिन आप यहाँ बोलते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हुतिया एडजस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप वो बोलते रहिए, सब लोग समझते रहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, पॉइंट समझिएगा। तो यहाँ मार्केट मतलब ये समझ के बैठ गए लोग, बाजार जाना, ठीक है। लेकिन मार्केट का एक्चुअल मीनिंग होता है वो हार्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कई चीजों में हम हिंदुस्तानियों ने अपनी एक अलग समझ बना ली है इंग्लिश में, और वो बोलते रहते हैं, जैसे कर्ड्स। कर्ड्स मतलब हम लोग दही बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपने कर्ड्स बोला तो वो नहीं समझ पाएंगे दही, वो नहीं समझ पाएंगे, दही नहीं समझ पाएंगे वो। तो थोड़ा समझ जरूरी है इस बात को समझना, ओके। आर यू गोइंग टू द शॉप्स, कैन यू बाय सम एप्पल्स, ओके। कैन यू बाय सम ब्रेड एट द शॉप्स, कैन यू बाय सम ब्रेड एट द शॉप्स। सम की रीजनिंग समझ में आ गई दोस्तों। यू ऑल चोज सम, आपने सुना तो सम ही था, पर मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो ये नहीं लगता है, तो आप लोग चेंज कर लिया अपना आंसर। यू चेंज योर आंसर, डू यू रिमेंबर? इन 2 minutes you changed your answer. It means you didn't remember the logic. Any will be the wrong word here. It's not a question, it's a request. Can you buy some bread at the shops? Number 4. We have a cup of coffee and at 11. वहां जो लिखा है उसके हिसाब से हमें बताना है, ए सन सम और एन जोड़ के बताओ भाई। नंबर 4, वहां बिस्किट्स लिखा है क्या? क्या लिखा है? तो क्या यूज करेंगे? ए। We have a cup of coffee and a biscuit at 11. We have a cup of coffee and a biscuit at 11. Number 5. There is some cheese in the fridge and okay, टो से मत शुरू करो, परेशान हो जाओगे। टमाटो, टमाटो, ट से शुरू करो, सही रहेगा। Okay, there is some cheese in the fridge. Why not a cheese? Cheese is uncountable, so you can't say a cheese. There is some cheese in the fridge and a tomato. Tomato doesn't matter. लेकिन start करो ट से, टो से मत शुरू करो। 6. Do you want? I'll help you. I'll help you, my dear students. Drink is a countable noun. अब decide कर लो मेरे बच्चों। Drink is a countable noun. Do you want a drink, tea, coffee? All right. Drink is a countable noun. So you should say, do you want a drink? Tea, coffee, lassi. Okay. Do you want a drink? Do you want a drink? Next, number 7. Give me some water. Quick. Give me some water. Give me some water. Okay. Water is uncountable. Give me some water. Quick. Can we say a water? Why not? Water is uncountable. How can you use a with an uncountable noun? It doesn't make sense. You can say a glass of water, but not a water. Okay. वो a tea चलेगा, 2 teas चलेगा, लेकिन 2 waters नहीं चलता, पता है ना आपको? क्यों? क्योंकि आप बोले कभी 2 पानी लाओ, बस इसीलिए। जो चीज जैसे है दुनिया में उसी के लिए। प्रॉब्लम क्या है, हमारा दिमाग इंग्लिश पढ़ते समय सिर्फ रूल्स के हिसाब से सोचता है। तो किसने बोला कि 2 टीज हो सकता है ना, तो ऐसे ही 2 वाटर्स नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, होता है लाइफ में। तुमने कभी बोला 2 पानी लाओ किसी को? लेकिन कहा होगा 2 चाय, सुना होगा 2 चाय, ठीक है। 3 दोस्त हैं, एक काम करो 2 चाय का 3 कर दो, ऐसा बोला होगा, ठीक है। तो 2 चाय को 3 कर दो, तो 2 चाय तो बोला ना। तो इंग्लिश में भी 2 टीज होते हैं, 3 टीज होते हैं, 4 टीज होते हैं। टी काउंटेबल हो सकता है इन इंग्लिश, बट वाटर इज। तो गिव मी क्विक, नंबर 8। A fruit and fruit, some fruit.
A fruit and fruit, some fruit. A fruit, some fruit and fruit. जो लोग डिसाइड कर रहे हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, उनका दिमाग क्या सोच रहा है? फ्रूट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। हर दिन हम खाते हैं, है ना? तो फ्रूट अनकाउंटेबल है, तो आप बताइए ए फ्रूट, सम फ्रूट और एन फ्रूट। नहीं डिसाइड हो रहा है, फिर से सोचिए। फ्रूट इज अनकाउंटेबल, अब बोलिए डू आई हैव सम फ्रूट, ए फ्रूट एंड फ्रूट? शांत मत रहना, तुम्हें तुम्हारे होने वाले सास के बॉयफ्रेंड की कसम। ऑलराइट, बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तुम्हारे होने वाले सास की बॉयफ्रेंड की। पक्का इसने अपने सास के बॉयफ्रेंड के साथ गद्दारी नहीं करी, ठीक है, सही किया। ऑलराइट, सम फ्रूट इज फाइन बिकॉज फ्रूट इज अनकाउंटेबल। ए फ्रूट बोलने के लिए फ्रूट को क्या होना पड़ेगा? ए फ्रूट बोलने के लिए फ्रूट को काउंटेबल होना पड़ेगा। तो ब्रेज, आप ए फ्रूट बोल रहे थे बेटा, आई हैव ए फ्रूट एवरी डे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हम एक फल रोज खाते हैं। वो जो आप बोलना चाह रहे हो वो ये नहीं है, हम कुछ फल रोज खाते हैं। आई हैव सम फ्रूट एवरी डे। गॉट इट? ओके। नंबर 9, डू यू वांट an orange or a banana? Do you want an orange or a banana? Do you want an orange or a banana? Orange is countable. Banana is also countable. Do you want an orange or a? तुमको ऑरेंज चाहिए कि बनाना चाहिए? डू यू वांट एन ऑरेंज और ए बनाना? नंबर 10, everybody, number 10, you need some eggs, not a eggs, not an eggs, it's plural. Do you want? You need some eggs to make an omelette. To make an omelette. Okay, well done, good job. Now, what do they like doing? क्या अच्छा लगता है इनको करना? What do they like doing मतलब? हाँ, इनको क्या करना अच्छा लगता है? आपको टीवी पे क्या देखना अच्छा लगता है? कैसे पूछेंगे? What do you like watching on? तो लाइक पसंद करना, अच्छा लगना की बात होती है ना नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में, तो आईएनजी बहुत कॉमनली बोलते हैं। व्हाट डू यू लाइक वॉचिंग? आपको क्या खाना पसंद है, अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लाइक ईटिंग? आपको क्या खाना है, क्या खाने का मन है, क्या खाना चाहते हैं? तो व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? याद आ गया सैटरडे वाला क्लास? आप लोग प्रॉमिस करके नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर से वार्निंग दे रहा हूं। एक समय आएगा कि मैं आपसे वो कर लूंगा, क्या कहते हैं, अपना इमोशनल कनेक्शन तोड़ लूंगा कि भाई आप सीखे ना सीखे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक मुझे लग रहा है कि मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। आप फिर आए हैं सैटरडे के क्लास के बिना प्रैक्टिस के क्लास में। आज सैटरडे के क्लास जो हुआ था, जो मैंने पढ़ाया था यहाँ, और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भेज दी थी 8 बजे तक, ठीक है? आप उसके रिकॉर्डिंग देखे बगैर, उसके प्रैक्टिस किए बगैर आप आए हैं, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। जो ऐसा कर रहा है कि एक क्लास, तुम्हें लगता है तुम इतने बड़े तेज दिमाग के इंसान हो, तो पहली बात है नहीं हो, ठीक है? इंग्लिश भाषा में तुम्हें एक बार कोई बताई जाए नहीं आएगी समझ में, तुमको उसको दोबारा तिबारा देखना पड़ेगा, तब तुम्हारे दिमाग को बात समझ में आएगी। समस्या तुम्हारे साथ है, ये तुम्हारा दिमाग उस चीज को धीरे समझता है, और तुम चाहते हो कि हम एक बार सुन ले, अब हम नहीं ध्यान देंगे, तो तुम वो नहीं जानने जैसा हो जाएगा कुछ समय के बाद। अगर देखा जाए तो तुम लोगों ने सम लिखा था वहां पर, कैन यू बाई सम ब्रेड एट द शॉप्स, बाद में मैंने एनी करवाने की कोशिश की, तुम मान गए तुरंत। इससे क्या पता चला था? कि सैटरडे वाला लेसन तुम्हारे दिमाग में नहीं था, एप्लीकेशन नहीं हुआ उसका। फिर बाद में याद दिला तो ओ यस, रिक्वेस्ट है, ये सम यूज होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में रहना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। मैं अगर कोई काम हाथ में लेता हूं कि मुझे करना है, मुझे इसमें समय देना है, तो मैं कुछ उसमें ग्रोथ चाहता हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं 10 मिनट दे रहा हूं, ग्रोथ नहीं आ रहा है, लेकिन 12 मिनट देने से ग्रोथ आ जाएगा,
मैं या तो 10 मिनट बंद कर दूंगा देना, या तो 2 मिनट और ऐड कर दूंगा, दो में से एक चीज करूंगा। क्योंकि 10 मिनट में ग्रोथ नहीं आ रहा है वो मुझे पता है, 12 मिनट में हो जाएगा। तो आप जो पढ़ के जाते हो यहां से, आप 90 मिनट्स देते हो ना यहाँ पे, और अगर 30 मिनट्स और दोगे घर पे रिवीजन करने में, रिवीजन थोड़ी 90 मिनट्स की वीडियो 90 मिनट्स में देखनी है, बिल्कुल नहीं। आपको उन हिस्सों पे फोकस करना है जहां पर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा था जो आपको सीखना था। ऐसे तो बहुत सी चीजें होती रहती हैं क्लास में, वो सब थोड़ी देखना है बैठ के 90 मिनट्स का। तो व्हाट डू दे लाइक डूइंग, इनको क्या करना पसंद है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है। आप मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स जानना चाहते हो, कैसे पूछोगे? व्हाट डू यू लाइक ईटिंग, संडे को क्या खाना पसंद है आपको? व्हाट डू यू लाइक ईटिंग ऑन संडे, व्हाट डू यू लाइक, है ना? क्या खाइएगा, क्या खाने का मन है? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, ये हो गया क्या खाने का मन है अभी। अभी बताइए क्या खाइएगा, क्या खाना चाहते हैं आप। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, मेरे से पूछना अभी, है ना? ठीक है। सोने का मन कर रहा है, कैसे पूछेंगे? सोने का मन कर रहा है, वुड यू लाइक टू स्लीप, सोने का मन कर रहा है, वुड यू लाइक टू स्लीप। हमको नहाना बहुत पसंद आता है, बहुत मजा आता है नहाने में। आई लाइक हैविंग अ बाथ, आई लाइक हैविंग अ बाथ, आई लव हैविंग अ बाथ, बहुत मजा आता है। हमको नहाने का मन कर रहा है। आई वुड लाइक टू हैव अ, अभी इतनी बात मैंने 2-3 बार मन कर रहा है, मन कर रहा है, यानी कि अभी करना है। तो ऐसे सिचुएशन को आप घर में बैठ के यही हिस्सा देखेंगे रिकॉर्डिंग में, और पॉज करके 2-3 सेंटेंसेस लिखेंगे अपने मन से। कैसे आपका नहीं हो जाएगा कॉन्फिडेंस कि अच्छा ये तो आ गया बोलना। तो वी हैव टू पीपल, साशा एंड बिल इन द फोटो। क्या लगता है ये क्या लिखा हुआ है उनके बारे में, क्या लिखा, उनको क्या पसंद है क्या, यही लिखा है ना? देखिए गौर से। वीकेंड इंटरेस्ट, हॉलीडेज, हॉलीडे एक्टिविटीज। Sasha likes going to the cinema. Sasha likes going to restaurants. Sasha likes relaxing somewhere hot. Sasha likes swimming and sunbathing. Sasha likes reading books. इसको पसंद है ये सब, अच्छा लगता है, इसको मजा आता है इस समय। Bill likes going to the cinema and the theater. Bill likes cooking dinner for friends. Bill likes exploring old cities. Bill likes going on long walks. Bill likes reading books. उसको अच्छा लगता है ये सब करना। आपको क्या करना अच्छा लगता है? I like doing this. I like doing that. इसको कहते हैं बॉडी क्लॉक। इतने बजे रुद्र के दिमाग में घंटी बजती है कि जाना है वॉशरूम। लेफ्ट साइड चल जा भाई, लेफ्ट साइड चल जा, राइट साइड ना जा। ओके, लेफ्ट साइड इधर। ओके। हम्म। ओके, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? हमको ना रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है। आई लव रसगुल्लास, आई लाइक रसगुल्लास, है ना? टीवी, टीवी देखना हमको बहुत अच्छा लगता है। आई लव वॉचिंग टीवी। तो बस ये तो आसान सेंटेंस है, सब जानते हैं। ठीक। हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक, कौन सा चीज, कोई भी चीज बिना बताए नहीं है टोल डालेंगे ना, क्या पसंद नहीं है। हमको एकदम अच्छा नहीं लगता है टीवी देखना। आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी एट ऑल। बहस करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक आर्गुइंग एट ऑल। आई डोंट लाइक आर्गुइंग एट ऑल, ओके। एनी प्रॉब्लम्स? बोलिए बोलिए। बट आई डू आर्गुइंग, ओह या। मैं आज दोस्तों के साथ था अपने, आई वाज विद माय फ्रेंड्स। तो एक फ्रेंड वाज टॉकिंग अबाउट फूड प्ले, एंड आई became quiet.
he was uh, um, you know, that friend said, कुछ लोग ना नहीं मानते हैं, जब तक उन पे खुद बीतेगा ना नहीं मानेंगे वो लोग। आई वाज लुकिंग अराउंड, ना नॉट मी, हम मानते हैं भाई, बहुत मानते हैं। दोस्तों के सामने झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। वो मेरी उम्र का 45 साल का है, ठीक है, वो ऐसा सोचता है, उसको हम कैसे समझाएं? समझना होता तो समझ चुका होता अब तक ना। तो अब देयर वाज नो पॉइंट इन आर्ग्यूमेंट, हाँ सही बोल रहे, टोटल सपोर्ट। कुछ लोग बेवकूफ होते नहीं मानते हैं ये सब चीज में। आई वाज दैट बेवकूफ, राइट? कभी कभी क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? देखो, जिसके समझ नहीं है ना वहां तक, वहां जबरदस्ती लेके जाओगे, हर चीज के झुकने की एक क्षमता होती है, उसके बाद ज्यादा झुकाते हो टूट जाता है, इलास्टिसिटी ना। तो सिमिलरली एवरीबॉडी हैज अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद उसको नहीं तुम सिखा सकते, उसके बाद वो परेशान हो जाएगा। 45-year-old person, and he told me his own story, how his wife was in trouble, and then a certain place, helped him so much. I said, okay, good. I'm happy that your wife is okay now. So yeah, there are lots of people who believe in these things. जिन्नात। एक मेरे मेरे क्लास में एक बच्चा आया था। तो मेरे मेरे क्लास में एक लड़का आया था, ए बॉय ज्वाइन माय क्लास, और वो ओवर कॉन्फिडेंट था। उसने देखा कि वो डिस्कशन क्लास में ज्वाइन किया था, उसको बोले तो कोई किसी को समझ नहीं आया क्या बोलता है, क्योंकि उसके सेंटेंस में कोई और छोड़ नहीं होता था, खाली अड बड बड शड वर्ड्स रख देता था आगे पीछे, कोई मीनिंग नहीं बनती थी। और मेरे क्लास के सारे बच्चे अच्छा बोल रहे थे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अदिति भी थी उस क्लास में डिस्कशन में, और आदित्य भी डिस्कशन में हिस्सा लेता था। तो क्लास का लेवल बहुत ऊंचा था, और वो कहीं से मैचअप नहीं कर पा रहा था। पता है उसने क्या बोलकर क्लास छोड़ा? कि आपके क्लास में सब टॉपिक से भटक के बात करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है इस क्लास। उसने क्या कहा? सबको टॉपिक पे आने के लिए आप बोलते नहीं है, सब इधर उधर का बात करने लगते हैं। जब किसी इंसान के पास क्षमता होती है इंग्लिश बोलने समझने की, तो एक बात से दूसरी बात को लिंक करता है, दूसरी बात से तीसरी बात को लिंक करता है, अच्छे से बातचीत होती है, सारे पहलुओं पर बातचीत होती है। उसको समझ नहीं आ, उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसने नहीं कहा कि मुझे ज्वाइन कराओ अपना क्लास जहां पर मुझे भी इनके जैसा बनाओ, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा। उसने कहा हमको कोई फायदा नहीं इसमें रहने से, क्योंकि आपका क्लास में सब लड़का लोग जो है ना बदतमीज तरीके से टॉपिक को इधर से उधर कर देता है, इधर उधर बात करने लगता है। इट वॉज द बेस्ट क्लास, डिस्कशन क्लास, ठीक है। और उसके बाद मैंने उस दिन रियलाइज किया कि इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम कुछ भी अपने आप को समझा लेते हैं। वो लड़का अगर 2 साल 1.5 साल मेहनत करता मेरे साथ किसी क्लास में बैठ के एलिमेंट्री, तो उसकी इंग्लिश बेहतर होती। उसने खराब बताया लोगों को और मुझे, मेरे को। एक और क्लास की बात, मैं बैच पढ़ा रहा था नॉर्मन लुइस, उसमें सब इंग्लिश बोल के मैं पढ़ाता था, सब आप जैसे बच्चे सीनियर होने के बाद ग्रामर एक वोकैबुलरी कोर्स जो चाहते थे, तो मैंने नॉर्मन लुइस पढ़ा, तो मैं इंग्लिश बोलता रहता था सब 60 मिनट लगातार, उनको कोई परेशानी नहीं थी। वो क्लास आया 10-15 दिन, उसके बाद बोला मास्टरवा के पढ़ावे नहीं आवे, खाली इंग्लिश में बकर बकर कराए, ठीक है, बाहर में बोला, ठीक है।
तो बताओ वो अपनी गलती देखने का कि मैं क्या करूं इस टीचर के साथ रह के कि मैं ऐसा बन सकूं। उसने कहा मास्टरवा के पढ़ावे ने आवे बकर बकर कराए खाली बैठ के इंग्लिश में, ठीक है, कुछ समझावा ना हो। तो उसका ऐसा सोचना था, उसने अपने आप को जस्टिफाई कर, उसको बहुत बुरा लगता है ये मानने में कि मैं पीछे हूं। तो इंसान जो होते हैं ना, मर्द जात, ठीक है ना, उन्होंने बहुत गंदे गंदे काम किए औरतों को सताने के लिए पास्ट में। उसमें से एक काम था औरतों पे ये तोहमत लगाना कि वो चुड़ैल होती हैं, वो डायन होती हैं, ठीक है, वो इंसान को कुछ कर। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहा होगा उनका, औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना। इसके अलावा कोई मकसद नहीं रहा होगा उनका। मर्दों की फितरत में जानता हूं, वो जिस औरत की तरफ ऐसा सोच रखते हैं ना, उसको किसी तरह से फंसा के वो अपने पास उसको मजबूर करना चाहते ताकि उनकी ख्वाहिश पूरी हो सके। तो आप सही बोलते हैं, जो आपने देखा है, जो सुना है, आज भले ही सामने से नहीं दिखता हो ये, लेकिन इसकी शुरुआत इसी तरीके से हुई होगी, औरतों पे इल्जाम लगाने की, ठीक है, कि औरतें, क्योंकि जब आप उसको बुरा बताओगे तभी तो उसको मजबूर कर सकोगे वो करने के लिए जो आप चाहते हो, क्योंकि उसको पहले डर दिखाओ समाज का, ठीक है ना। तो आई हेट दिस, यू नो, आई डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, देयर वाज अ टाइम आई वाज यंग बॉय and I thought that it was real because I was stupid. But again, I don't believe in these things at all. If a woman has the power to eat up your heart without touching you, है ना, तो इट फेल्स न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारे जो लॉज हैं उसके लॉज फेल हो जाते हैं कि आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया उसका हार्ट वहां से, हार्ट को वहां से हटाने के लिए रैप्चर करना पड़ेगा, कुछ कुछ हटना पड़ेगा, कुछ बात समझ रहे हैं। तो अगर वो हट जाए किसी की औरत के देखने से, वहां से हट जाए हार्ट, तो आप उस रूल्स वो टूट जाते हैं उसके। तो आई डोंट लाइक थिंग्स विच चैलेंज फिजिक्स, मतलब मैं उन पे यकीन नहीं करता जो फिजिक्स के लॉज को चैलेंज करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो अभी हम लोग समझ नहीं पा रहे, दैट्स ओके। They do things. I'm not saying they don't. They believe these things happen. And in some cases, coincidentally, those things come true. So people believe it's real. It's not that I was watching a video. एक कौन कौन क्रिश्चियन पास्टर है, बड़ा हैंडसम सा टॉल सा आदमी है, वो औरतों को ऐसे छूता है, एक औरत को छूता है, वहां बैठी सारी 40 औरतें ऐसे से होने लगती हैं पूरा एकदम, ठीक है। तो वो, इसको कहते हैं हिप्नोटिक, मास हिप्नोटिज्म। मतलब आदमी मजबूर हो जाता है, वो सब नाटक नहीं कर रही हैं, वो इतनी कमजोर दिमाग की है कि वो एक्चुअली अलाउ कर रही है अपने आप को फील करने, यकीन करने का कैसा हुआ है। इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी। मास हिस्टीरिया देखा है इस तरह का। गणेश जी दूध पी रहे थे दोस्तों, कई लोगों ने जाकर गणेश जी को दूध पिलाया, कहा आंख से देखे गणेश जी दूध पिए मेरा, कैसे नहीं माने कि नहीं सच होता है। करोड़ों लोग ने दूध पिलाया ना, दूध पिलाने वाली जब बात होती थी तो अभी क्या हो गया, मोबाइल फोन आ गया, अब देखना दूध पीना वाला बंद हो गया होगा, ठीक है। जब से मोबाइल फोन आया है, स्मार्टफोन ये वीडियो के साथ, अब देखना दूध पीना बंद हो गया होगा गणेश जी का, ठीक है। अब गणेश जी को दूध पसंद नहीं रहा, ठीक है, अब नहीं पीते गणेश जी दूध। जब तक पिछले साल, जब तक छोटा छोटा फोन था ना, थोड़ा कुछ कुछ जगह दूध पिए थे वो, कुछ लोग वीडियोस बनाए थे, देखो दूध खत्म हो रहा है, लेकिन अब खत्म, अब नहीं दूध पिएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं अगले 10 साल 15 साल में कोई दूध पीने वाली घटना आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सबके पास क्या है। तो जहां भी इस घटना होगी वहां पर वीडियो बनेगा ना, देखना चीजें सामने आ जाएंगी। तो इट्स ऑल, जब तक अपना दिल नहीं मजबूत करेंगे सच्चाई जानने के लिए कैसे जानेंगे। एनीवेज, कम बैक टू दिस, खराब टॉपिक में मुझे मत ले जाया करो तुम हमेशा। जाहिलियत के लिए मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, आई एम नॉट जाहिल, दैट्स ऑल। मैं जाहिलियत वाली बातों पे यकीन नहीं करूंगा। वापस आते हैं दोस्तों। नंबर वन, Sasha likes going to the cinema. Sasha likes, and so does Bill, and so does, मतलब बिल को भी, हाँ, Sasha likes going to the cinema and so does. Number two, Bill likes going to the theater. Number three, Sasha likes going to restaurants, but Bill likes cooking dinner for friends. He doesn't like going to restaurants. Okay? He doesn't like going to, he likes cooking dinner for friends. Four, Sasha likes
रिलैक्सिंग समवेयर हॉट, उसको कहीं गर्म जगह पे आराम करना अच्छा लगता है, जैसे तवा ववा पे वो लेट जाती होगी जाके, या चूल्हे में घुस जाती होगी, गर्म जगह पे उसको अच्छा लगता है। शेषा लाइक्स रिलैक्सिंग समवेयर हॉट, समवेयर हॉट मतलब कनाडा, somewhere hot means Canada. No, not normally Canada. Okay, somewhere hot like India maybe. Okay, Sasha likes relaxing somewhere, but Bill likes exploring old cities, exploring, visiting, finding out about them, learning about them, exploring. पता चला एक्सप्लोर मतलब? एक्सप्लोर मतलब जा करके घूमना, उस जगह को समझना, उसके बारे में जानकारी पता करना, ये होता है एक्सप्लोर करना। बिल लाइक्स एक्सप्लोरिंग ओल्ड सिटीज। नंबर 5, सशा लाइक्स स्विमिंग एंड सनबेथिंग। सनबेथिंग, धूप में पड़े रहना, सनबेथिंग। शी लाइक्स स्विमिंग एंड सनबेथिंग, बट बिल he likes going on long walks. And number 6, they both like reading books. They both like reading books. No problems? Okay. अभी पहला सेंटेंस पे वापस जाओ। Sasha likes going to the cinema. So does Bill. So does Bill का स्ट्रक्चर को गौर करना, कनेक्ट करना उसको Sasha likes going to the cinema से। Sasha likes going to the, so does, मैं सुनो मैं बोलता हूं, I like drawing. I like, मेरी बेटी को भी अच्छा लगता है ड्राइंग। So does my daughter. I like drawing. So does my daughter. आगे सुनो, I speak English fluently. I speak English, मेरी बेटी भी बोल लेती है। So does my daughter. Okay? और सुनिएगा, I am very rational. Rational मतलब लॉजिकल। I am very rational. मेरी बेटी भी। नहीं किया ना आपने, दिमाग नहीं लगाना। बताओ बेटा, आई एम वेरी रैशनल, मेरी बेटी भी। तो इज माई डॉटर, है ना? तो तुम्हारा दिमाग वहां पहुंच गया जहां पहुंचना चाहिए था। कुछ लोग का दिमाग अभी भी वहां नहीं पहुंचा है कि कौन सा बात से डिसाइड हो रहा है। वो डज क्यों आया था? क्योंकि यहां था सशा लाइक्स, तो इस वजह से मैंने कहा आई एम वेरी रैशनल। किधर है V1 V5 ऐसा कुछ? बी वर्ब था। आई एम वेरी रैशनल, मेरी बेटी भी। सो इज अदिति, सो इज माई डॉटर अदिति। आयत बहुत नॉटी है, आयत इज वेरी नॉटी, आयत इज वेरी। इनाया भी, सो इज इनाया, सो इज इनाया। समझ में आया? और सुनिएगा, आयत बहुत क्यूट है, आयत इज वेरी क्यूट। इनाया भी, आयत बहुत ध्यान देती है, आयत पेज फुल अटेंशन, आयत पेज फुल अटेंशन इन द क्लास। इनाया भी, सो डज इनाया, क्योंकि मैंने कहा था आयत पेज फुल अटेंशन। पीछे वाली बात से कनेक्ट बना, कनेक्शन बना। अब देखना और बोलता हूं, लास्ट नाइट आयत वॉच्ड ए मूवी। लास्ट नाइट आयत वॉच्ड ए, इनाया भी देखी थी। कुछ लोग का दिमाग चल रहा है मेरे क्लास में, बहुत बढ़िया, वेल डन ऑल दोस हु सेड सो डिड इनाया। क्योंकि अभी मेरा पहला सेंटेंस था आयत वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, है ना? Ayat can live alone for 1 or 2 days without her parents. Ayat can live alone without her parents for 1 or 2 days. इनाया भी रह सकती है। So can इनाया, so can इनाया। समझ में आ रहा है? पैटर्न समझ में आ गया? ये पैटर्न किसको आसान लगेगा फॉलो करना, जो अब तक सारी बातों पे ध्यान दिए हुए था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। ठीक है? और सुनिए,
मम्मी बहुत चिल्लाती है, पापा भी चिल्लाते हैं। मम्मी shouts a lot and so does पापा। आई बात समझ में? पापा भी क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। मम्मी हमको बहुत प्यार करती है, पापा भी करते हैं। My mother loves me a lot and so does my papa. So does my papa means my papa also loves me. Okay? Any problems? All right. मान लो किसी एक स्टूडेंट ने कहा मुझे, सर आई रियली रियली रिस्पेक्ट यू। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा सर आई रियली रिस्पेक्ट यू, तो दूसरा वाला हम लोग भी करते हैं, तो कैसे बोलेगा? सो सो डू वी। थोड़ा सा फर्क रहा, उसने पूरा ध्यान लगा दिया कि अरेंजमेंट दूसरा था, है ना बेटा, ऑर्डर अलग था, है ना। बस एक लड़के ने कहा सर आई रियली रिस्पेक्ट यू सर, तो दूसरा सर हम भी करते हैं सर, तो डू आई सर। ठीक है, तो ये जैसे हम भी हिंदी में है वैसे इंग्लिश में ये है। कोई परेशानी? देखो इंसानी फितरत कितनी अजीब होती है। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, उसको सीखने में थोड़ी मुश्किल हुई, इसके बजाय कि वो मेहनत करे, उसने कहा इसका जरूरत क्या है, मतलब उसको मुश्किल हो रही है ना, तो कह रहा है इसकी जरूरत क्या है। देखो सामने लिखा है सेंटेंस, वो कह रहा है इसकी जरूरत क्या है। इंग्लैंड में या अमेरिका में या जो भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, ये सब सेंटेंसेस बार बार यूज करते हैं इस तरह के। ठीक है, अब वो आदमी क्योंकि उसको ये सब पकड़ने में टाइम लग रहा था, तो मेहनत करने की जगह एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना कि मुझे मुश्किल हो रही है, मैं मेहनत करके सीख जाऊं, वो क्या बोल रहा है? ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही तो नहीं है, फालतू है ये सब, इतना कौन डज सर, इतना कौन सोचता है। मैंने कहा बेटा समझ में आएगा, जब तक बिहार में हो तब तक तुम ये सब बदमाशियां कर लो। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनका ईगो इतना बड़ा है कि उनका ईगो उनको सीखने नहीं दे रहा। जहां पर स्ट्रगल करते हैं ना वो, तो वो कहते हैं ये चीज ही जरूरी नहीं है। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे। एक लड़की के लिए पागल हुआ वो पूरा, लेकिन जैसे उस लड़की ने उसको गालियां दी, बोली वो खत्म है वो लड़की, उसका दिमाग दूसरी तरफ हो गया। अब उसको अच्छा नहीं बोल रहा वो, अब बोला एकदम वो खत्म है, उसके ऐसी बेकार लड़की आज तक दुनिया में नहीं हुई है। लेकिन आधे घंटे पहले तक उसके लिए वो पागल था। ठीक है, हाँ बस एक चीज बदल गया, क्योंकि इसने उसको गालियां दे दी है लड़की ने, अब वो उसकी राय बदल गई पूरी। इसको कहते हैं अपना ईगो को हैंडल नहीं कर पाना। अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग भी बोलेंगे सोडस बिल की जरूरत नहीं पड़ने वाली? कितना आसान सेंटेंस था। सचिन तेंदुलकर बात कर रहे थे कि एक इंटरव्यू में कि सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी खुश था। एवरीबॉडी वॉज वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी वॉज, और अगले लाइन में उन्होंने कहा सो वाज आई एंड सो वाज आई। ठीक है, ऐसे। अब वो उसको वो सारे क्लिपिंग्स में रिकॉर्ड करके दिखाऊं कि कहाँ जरूरत पड़ने वाली है। कितना इजी स्मूथ है। ठीक है, और बचा लेता है कि नहीं बहुत सारा ज्यादा वर्ड्स बोलने से। सो वाज आई। हम्म, ओके देन वी आर डन हियर, वी स्टिल हैव 5 minutes लेफ्ट। पेज नंबर 49 was your homework too? Have you done it? Really? Great. Exercise 4. I would like plus noun and infinitive. इसका मतलब होता है मन कर रहा है, चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस। सोने का मन कर रहा है, आई वुड लाइक टू, हम सोना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू स्लीप। एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब है आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वुड लाइक टू स्लीप मीन्स। देखो सिचुएशन के हिसाब से लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं देखो। नंबर 1, I'm hungry, I would like something to eat. I'm hungry, I would like something to eat. भूख लगा हुआ है, कुछ खाने का मन कर रहा है, राइट, हमको कुछ खाने के लिए चाहिए। I'm hungry, I would like something to eat। पूरी बात एक साथ में बोलो, समझ के बोलो, और आई वुड लाइक पर वैल्यू करो, ध्यान लगाओ मैंने क्या बताया, समझ में आ जाएगा, बोलने लग जाओगे। ट्राई करो। नंबर 2, है ना, I'm thirsty, I would like a
Drink. I would like a glass of water. I'm thirsty. I would like a glass of. Next, beta. I have too much work. I would like a holiday. Okay. Next. गर्मी लग रही है. I'm hot. हालांकि I'm hot मतलब एक और मीनिंग होता है. I'm attractive. ठीक है. Okay. I'm hot. I would like an ice cream. बड़ी गर्मी लग रही है यार. हमको आइसक्रीम खाना है यार. Right? हाँ, इसका मतलब यही हुआ. I'm feeling hot. I'm hot means I'm feeling hot. अच्छा, I'm happy मतलब क्या हुआ? I'm feeling happy. I'm happy means. I'm annoyed means. तो I am cold means. लेकिन हम लोग को ना फीलिंग से ही आदत पड़ती है बोलने की, क्योंकि हमारे स्कूल टाइम, एलिमेंट्री स्कूल यानी बेसिक स्कूल जो होता है पहला प्राइमरी, उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश आती है, तो वो वाला सिखाते हैं और वो बचपन में दिमाग में बैठता है ना, वो निकलता नहीं है. इसीलिए ऐसा नहीं कि ऐसा बोलना कोई अजीब है, इंग्लिश में एकदम नॉर्मल है. आई एम हॉट. आई वुड लाइक टू हैव अ बाथ. आई एम हॉट. गर्मी लग रही है, नहाने का मन कर रहा है. आई वुड लाइक टू हैव अ बाथ. या टोटली. उनको हिंदी नहीं पता, बस तुम इंग्लिश का मतलब समझ जाओ. इंग्लिश में कौन से वर्ड से मैच कराओगे ये तुम्हारा टेंशन है नहीं. तुम बाहर आए घर से, घर घर आए बाहर से दोपहर में, जून के महीने में, मई के महीने में, शाम में घर आए, माँ बहुत गर्मी लग रहा है, हम नहाएंगे माँ. या आई एम वेरी हॉट. आई वुड लाइक टू हैव अ बाथ. इजी इंग्लिश. नेक्स्ट बेटा, नंबर 5. I would like to go to, I would like to go to bed. Next beta, number 6. I would like a party. I would like to have a 7. I don't have any money. I would like to be a millionaire. Millionaire. 8. I'm bored. I'm bored. I would like to go to the cinema. Right. And it's 5 o'clock. I would like to end the class. Okay. It's 5 o'clock. I would like to. Actually, I don't want to end the class, लेकिन करना पड़ेगा because आपको जाना है. We will meet tomorrow. Yeah. And we'll continue. Those who have not done their homework, please do it. Okay, it's very, very useful. जो आप पढ़ रहे हैं बहुत रोजमर्रे में काम आने वाली है और फाउंडेशन पड़ जाएगा आगे की चीजों को सीखने के लिए दोस्तों. Do some revision. Okay. Bye everyone.